Hello, aspirants. Today we are going to take the fifth lecture of the series of Chhattisgarh GS. In this lecture, we will deal with two different districts that are Kabirdham, and Narayanpur. The only district left from the Bastar division is Narayanpur. We have dealt with all the districts that are Kanker, Kondagaon, Bastar, Dantewada, Sukma, and Bijapur. So the only district left is Narayanpur, and we will start a new division, that is Durg division, from the district Kabirdham, earlier known as Kavardha. Okay. Further, before starting the class, as a ritual, we will deal with an inspiring word that will motivate us. Today's word is enjoy. Enjoy the process, guys. Enjoy the process. You will reach your goal. You will reach your goal. The process is very important, and enjoying the process is rather more important to achieve your goal. To achieve your goal. Okay, so let's start the class. So guys, so let's make the map of Kabirdham. Kabirdham. Okay. This is National Highway 30. National Highway 30. And this is National Highway 130A. ठीक है, National Highway 30, National Highway 130A. This is National Highway 30. National Highway 130A. National Highway 30 is the biggest national highway of छत्तीसगढ़. मैंने पहले भी बताया है, and I am telling it again. Biggest national highway of CG, also called as lifeline of CG, Chhattisgarh. This National Highway 30 goes towards Bilaspur. 130A, sorry. Bilaspur. Okay. So, this is Kavardha. Earlier, the district Kabirdham was known as Kavardha. Kabirdham district was established in 1998, carving Bilaspur district and राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट. कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट जो बना था वो बिलासपुर और राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट करके बनाया गया था. और ऑल्सो यू कैन राइट कबीरधाम इज अ वॉज अ प्रिंसली स्टेट. प्रिंसली स्टेट, जो 14 प्रिंसली स्टेट छत्तीसगढ़ में हुआ करते थे, उनमें एक प्रिंसली स्टेट था ये. ठीक है, स्टेट था ये. और इट इज ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट विथ लीस्ट रेनफॉल due to Maikal ranges. I will tell it afterwards. So further going through, we have dealt with the National Highway 30, we have dealt with National Highway 130A that goes to Bilaspur, and we have seen Kavardha, the headquarter of the district Kavardha. Further, we are going to deal with this. We will try to make the Chilfi Ghati and Maikal ranges. आप लोगों ने सुना होगा Maikal range and Chilfi Ghati. चिल्फी घाटी जहाँ बहुत ही ठंडी पड़ती है, बर्फ़ जम जाता है, और माइकल रेंज जिसकी वजह से बरसात कम होती है कवर्धा रीजन में. सो गाइज, लेट्स डील विद दैट. यहाँ पे आपको पड़ेगा माइकल रेंजेस. ये आपका माइकल रेंजेस है. दिस इज माइकल रेंजेस, एंड हियर इट इज चिल्फी घाटी. This is range. This is Chilfi Ghati. Okay. Here in National Highway 30, it is Bodla. Here it is Ramhepur.
Let's write some facts about Ramhepur. First, Bhuramdev Cooperative Sugar Mill. Cooperative Sugar Mill was started there at 2003. It was first sugar कोऑपरेटिव ऑफ छत्तीसगढ़. सो अगर क्वेश्चन आता है कि पहला शुगर कोऑपरेटिव ऑफ छत्तीसगढ़ कहाँ स्टैब्लिश्ड हुआ था, देन इट इज द आंसर विल बी कबीरधाम. और कब हुआ था पूछा जाएगा 2003 पे. ठीक है. ऑल्सो द फर्स्ट इथेनॉल प्लांट अभी आपने देखा होगा, इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल इज गोइंग टू इंक्रीज एज पर BS6 नॉर्म्स. Further, we have to increase to 25% till 2030. So, ethanol plants भी सारे स्टेट सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ इज अ वेरी रिच स्टेट विथ इथेनॉल. The raw material for ethanol, that is jatopra and sugarcane wastes. So, the first ethanol plant has been proposed here. Okay, and 6 megawatt of electricity has been produced here through sugarcane waste. ठीक है. 6 मेगावाट और वेरी नॉमिनल है, बट यू हैव टू नो दैट. तो रामेपुर से वी हैव नो ऑल द थिंग्स वी हैव डेल्ट what all things are in Ramhepur. Okay, so further we will deal with this. We have to come back to map. तो यहाँ पे हरिन छपरा पड़ता है. हरिन छपरा इंडस्ट्रियल एरिया है. एवरी डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग सम और द अदर इंडस्ट्रियल एरिया. तो जैसे हमने टेकेनार पढ़ा था दंतेवाड़ा में, वैसे ही यहाँ पे हरिन छपरा इज द इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ कबीरधाम. ठीक है. यहाँ पे पड़ता है पंडरिया. ये सारे ब्लॉक्स हैं यहाँ के. विशेषरा. ओके. सो विशेषरा के ऊपर एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं विशेषरा पे, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री. That is the 4th in state here. Okay, here. So guys, further we are going to deal with Pachrahi. यहाँ पचराही है. When we will study art and culture and ancient of this Chhattisgarh, we will see here archaeological sites. तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देता है कि पचराही में क्या है. सो क्वेश्चन 1 लाइनर आ जाएगा और 4 चीजें दे देंगी, इकोनॉमिकल समथिंग. तो यू हैव टू नो दैट कि वो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है. ठीक है. हरिन छपरा वी हैव डेल्ट विद रामेपुर, वी हैव डेल्ट विद कबीरधाम. सो नाउ वी विल डील विथ डिफरेंट टेम्पल्स. द टेम्पल आई हैव शोन यू, दिस इज भूरमदेव टेम्पल. ओके. तो फर्दर वी विल सी. तो अब यहाँ पे here is a place that is चौरा विलेज. चौरा विलेज में 3 चीजें हैं, हमको 3 चीजें डील करनी है. फर्स्ट इज भूरमदेव मंदिर टेम्पल. सेकंड इज मड़वा महल. एंड थर्ड इज मड़वा महल. This I have dealt with. Cherki Mahal. Let's write some facts about all this. Bhuramdev Temple. So guys, Bhuramdev Temple was built in 1089 AD. It is a Shiv temple. Shiva temple, also
known as Adivasi Devta from by tribes of nearby. Adivasi Devta. This temple was built in the range of when Gopal Dev was king. This temple was built when Gopal Dev was king. He hasn't built the temple. He was a king of Faninag dynasty at the time when Bhuramdev temple was built, and he commanded his general to build the temple, and he was Lakshman Dev Rai who built the temple. Lakshman Dev Rai. So यहाँ पे देखिए अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं कि भूरामदेव टेम्पल, यहाँ से 5 क्वेश्चन बनते हैं। भूरामदेव टेम्पल कहाँ पड़ता है कबीरधाम में? भूरामदेव टेम्पल कब बना है? 1089 AD। और ये किस टाइप का टेम्पल है? शैवाइट है, वैष्णवाइट है? तो शिवाइट टेम्पल है ये। आदिवासी देवता ये बोला जाता है। इसको किस किंग के रेंज में, किस किंग के टाइम पे बनाया गया? किस किंग के टाइम पे? तब यू विल आंसर इट गोपाल देव। याद रखना गोपाल देव वॉज अ किंग एट दैट टाइम एंड ही वॉज ऑफ फनीनाग डायनेस्टी। किस डायनेस्टी में बना था? फनीनाग। देखिए एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा, फनीनाग डायनेस्टी। एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज हु बिल्ड? किसने बिल्ड किया? यहाँ पे किसने बिल्ड किया, बनाया किसने है? तो लक्ष्मण देव राय। फर्दर 2 क्वेश्चन और बनते हैं इसमें। किस टाइप का टेम्पल है? नगरा स्टाइल का टेम्पल है। एंड फर्दर कि और क्या बोला जाता है इसको? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, देखिए ये टेम्पल है खजुराहो का टेम्पल भी आप देखेंगे तो ऐसा ही दिखता है। इस टेम्पल में सबसे बड़ी खासियत क्या? देखिए यहाँ पे ये जो शिखर है, दिस इज द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल। हम आके जब डील करेंगे एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तब इसमें आएगा आपको। अभी छोटा सा बता देता हूँ। देखिए 3 प्रकार के टेम्पल होते हैं, नगरा, द्रविड़ा एंड मेजर 2 प्रकार के टेम्पल होते हैं। 2 प्रकार के टेम्पल आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। होने को 5-4 प्रकार के हैं। उड़ीसा में देउल वाला टेम्पल होता है, देन द मिक्सचर ऑफ बोथ नगरा एंड विशेषरा होता है, ये द्रविड़ा एंड नगरा होता है, एंड देयर इज ऑल्सो सोलंकी टाइप ऑफ टेम्पल्स। बट ये नगरा और द्रविड़ा में अंतर क्या? नगरा इज हैविंग दिस टाइप ऑफ शिखर बोलते हैं इसको, ठीक है, ये शिखर। और यहीं पे जब द्रविड़ा टेम्पल होता है तो इट इज विमान ऐसा होता है, ये विमान। तो यहाँ ये इसको विमान बोला जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये नगरा स्टाइल का टेम्पल है। नगरा स्टाइल आप देख सकते हैं, ये शिखर बना हुआ है इसमें, इसके ऊपर अमलक होता है यहाँ पे, और वी विल डील विद दैट इन फर्दर क्लासेस। सो आपने ये देख लिया, सारे 6-7 क्वेश्चन यहाँ भूरमदेव टेम्पल से बनते हैं। फर्दर ये कहाँ पड़ता है? एक और क्वेश्चन पढ़ सकता है, चौरा विलेज छत्तीसगढ़। PSC और व्यापम अब बहुत अंदर घुस रहा है। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू भूरमदेव टेम्पल, ठीक है। फर्दर हमने देखा क्या, चौरा विलेज में 2 और चीजें देखी हमने, मड़वा महल एंड छेरकी महल, ठीक है। These both of the महल have been made by रामचंद्र of फनीनाग dynasty, फनीनाग, and अंबिका देवी of कलचुरी dynasty. She was the princess, कलचुरी princess. Married रामचंद्र ऑफ फनीनाग डायनेस्टी। तो ये आपने तीनों साइड्स देख ली। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे और कौन कौन से मिलते हैं कबीरधाम में। यहाँ पे 2 टाइप के और मिलते हैं, दैट इज आयरन ओर, ठीक है, और दूसरा मिलता है बॉक्साइट। कहाँ मिलता है ये देखिए, A, B एंड C, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, A, B, C। तो आयरन ओर कहाँ कहाँ मिलता है? एक लामा, A से याद कर सकते हैं आप, एक लामा एंड C, एक लामा एंड C, चेली कामा, दोनों जो एक लामा और चेली कामा है, यहाँ आपको मिलता है आयरन ओर। और जो यहाँ पे आपको B से बॉक्साइट होता है, तो बॉक्साइट यहाँ B में मिलता है आपको, एंड दैट स्टैंड फॉर बोरई दली। ये देखिए आप बोरई से कंफ्यूज नहीं होना, ये दुर्ग में भी एक डिस्ट्रिक्ट है, इंडस्ट्रियल इलाका है बोरई, तो ये बोरई दलदली है एंड दुर्ग वाला इस बोरई। आगे हम लोग डील करेंगे। तो हमने तीनों चीज देख ली। यहाँ पे 2 और मिलते हैं, जो है आयरन ओर एंड बॉक्साइट ओर, जो कि आयरन ओर कहाँ कहाँ मिलता है? एक लामा से मिलता है, चेली कामा से मिलता है हमको, एंड बॉक्साइट ओर जो मिलता है वो बोरई दलदली से मिलता है हमको, ठीक है।
सो हमने रामेपुर देख लिया है, हमने कबीरधाम में चौरा विलेज में सभी चीज़ें देख ली है हमने माइकल रेंज देख लिया, चिल्फी घाटी देख लिया। अच्छा, माइकल रेंज में हमको जो पहाड़, जो सबसे ऊंचा पहाड़ मिलता है माइकल रेंज का, वो बदरगढ़ है। ये भी पूछता है, मैच द फॉलोइंग में पूछता है, हाईएस्ट भी पूछता है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगाने पूछता है। तो वी विल डील विथ ऑल द माउंटेन्स आखिर में एक साथ ऑल्सो, बट अभी हम लोग एक बार हर डिस्ट्रिक्ट में देख लेते हैं कहाँ पे क्या है। तो बदरगढ़ जो है ये हाईएस्ट पीक ऑफ कबीरधाम है, दैट इज 1176 मीटर्स। ओके, अब यहाँ पे इतना ये हमने कर लिया। पंडरिया विशेषरा वी हैव डन विद, फर्स्ट इथेनॉल प्लांट ऑफ कवर्धा वी हैव डेल्ट। अच्छा, वी हैव टू सी दैट स्टेट्स फर्स्ट जैगरी, जैगरी किसको बोलते हैं? गुड़, गुड़ शुगर केन से बनता है ना, केन शुगर से गुड़। फैक्ट्री कबीरधाम में स्टेब्लिश्ड होगी एंड इट विल बी द सेकेंड ऑफ कंट्री, सेकेंड ऑफ कंट्री, ठीक है, फर्स्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड सेकेंड ऑफ कंट्री। यू हैव टू रिमेंबर दैट कि अगर पूछता है कि पहला छत्तीसगढ़ का जैगरी प्लांट कहाँ लग रहा है, तो वो कबीरधाम होगा। एंड इफ इट इज सेड दैट कि क्वेश्चन को वाइस वर्सा उल्टा पूछता है कि एक कबीरधाम में फैक्ट्री सेटअप हुई है एंड दैट इज द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ इंडिया, ऐसा एक लाइन होता है, तो ये गलत होगा। इट इज सेकेंड फैक्ट्री दैट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, दैट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एंड द फर्स्ट फैक्ट्री इज इन महाराष्ट्र। ओके, सो वी हैव डेल्ट विद दिस ऑल। तो हमने दो डैम भी है यहाँ पे, हमको देख लेना है यहाँ पे, डैम्स डैम्स डैम्स, दैट इज सुतियापात डैम एंड Karnala dam. This both dam are there. Here also एक अभी में एक और that we have to deal with two more thing. अभी हाँ, रानी दरहा और रानी दहरा। हमने रानी दरहा पढ़ा था सुकमा में पढ़ा था हमने। रानी क्या पढ़ा था वहाँ? रानी दरहा, DARHA। तो यहाँ आप दूसरी चीज पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने उस टाइम पे बताया था आपको कि डोंट गेट कंफ्यूज विद रानी दहरा एंड रानी दहरा, दरहा एंड दहरा, DAR और DAH। तो यहाँ दहरा है, दहरा, रानी दहरा। ओके, मेरा भी यहाँ पे टंग स्लिप कर जा रहा है। ओके, दिस इज रानी। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा सकता है, यहाँ पे क्या कंफ्यूजन बहुत है। दहरा वाटरफॉल। ओके, सो दिस इज पचराही में आर्कियोलॉजिकल साइट हो गया, बोदला हो गया, हरिन छपरा में इंडस्ट्रियल एरिया हो गया हमारा। NH 130A गोज टूवर्ड्स दिस बिलासपुर। ओके, कवर्धा हो गया हमारे पास। अच्छा, कवर्धा में अभी लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन आते हैं? मोहम्मद अकबर जी, ही इज मिनिस्टर ऑल्सो, सो वी हैव टू नो दैट। सो फर्दर यहाँ पे और है हाथी दरवाज़ा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाथी दरवाज़ा बिल्ट बाई धर्मजीत सिंह जी, ठीक है। फर्दर जियोग्राफिकल फैक्ट वी हैव टू नो दैट कि माइकल रेंज एक्ट एज अ डिवाइड बिटवीन महानदी एंड नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम। जैसे शिवनाथ और वी हैव डेल्ट विद केशकाल ना, कि महानदी और इंद्रावती के बीच में केशकाल एक्ट एज द डिवाइड। सिमिलरली माइकल रेंज एक्ट एज द डिवाइड बिटवीन महानदी एंड नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। इट इज ऑल्सो द बाउंड्री बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। यहां से बाउंड्री भी डिसाइड होती है। जनरली कभी भी किसी स्टेट की बाउंड्री होती है वो नदी के होते हुए बाउंड्री डिसाइड होती है। जैसे हमने सबरी से देखा था, सुकमा डिवाइड हुआ था, वैसे ही या तो फिर माउंटेन से डिवाइड होती है या जंगल से डिवाइड होती है। इट इज अ जनरल थिंग, क्योंकि ये डिवीजन के लिए इजी होता है, ठीक है। सो गाइज, अब हम लोग देखिए छोटा सा एक ज्योग्राफिकल फैक्ट आप लोगों को बता देते हैं। वाई माइकल रेंज और कबीरधाम में सबसे कम पानी क्यों गिरता है? देखिए, माइकल रेंज जो है वो लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन पड़ता है, ठीक है। सॉरी, कबीरधाम जो है वो लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन पड़ता है। आपको मैं अच्छे से जब ज्योग्राफी यहाँ डील करेंगे हम लोग, आखिर ड्रेनेज सिस्टम में भी मैं अच्छे से बताऊंगा। बस एक आप नॉर्मल यहाँ पे देख लीजिए, ये पहाड़ है, ये मान के चलिए माइकल रेंज है, ठीक है। ये माइकल कहीं रेंज है,
तो यहाँ से मॉइस्ट राइजिंग एयर आएंगी, मॉइस्ट राइजिंग एयर, ऊपर उठती है राइजिंग एयर। अब फर्दर ये जो एयर है ये बादल बनते हैं, बादल बनके ये ऊपर में इस पहाड़ से रुक जाते हैं। सो हियर दे परसिपिटेट, यहाँ परसिपिटेट हो जाते हैं, यहाँ पानी गिर जाता है, ये बादल है और यहाँ परसिपिटेट होके पानी गिर जा रहा है आपका। सो फर्दर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बादल है ये ड्राई हो जा रहे हैं, लेस ह्यूमिड हो जा रहे हैं, लेस ह्यूमिड। सो यहाँ परसिपिटेशन के लिए दे आर नॉट हैविंग मच ह्यूमिडिटी। सो यहाँ पे क्या होता है, ड्राई और डिसेंड कर जाता है, ड्राई एंड हॉट एयर डिसेंड्स, डिसेंडिंग एयर हो जाता है। सो दिस एरिया जो है, ये एरिया, ये सूखा एरिया हो जाता है, यहाँ खूब पानी गिरेगा माइकल रेंज के इधर, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड लीवर्ड साइड एंड दिस एरिया इज कॉल्ड विंडवर्ड साइड। ठीक है, तो ये जो आपका कबीर धाम है वो यहाँ है, कबीर धाम यहाँ पड़ता है आपका लीवर्ड साइड पे। दिस इज द मेजर रीजन कि यहाँ पे कबीर धाम में लीस्ट वाटर जो गिरता है वो इसका रीजन यही है। चलिए, तो हमने, हाँ, एक हम लास्ट फैक्ट हम एक और भूल रहे हैं जो करंट अफेयर में अभी अभी था, दैट इज जंगल सफारी प्रपोज हुई है यहाँ पे रामचुआ हरमू में एक जंगल सफारी प्रपोज हुई है। तो उसको आप लिख सकते हैं, कहीं पे भी लिख लीजिए। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, रामचू हरमू, क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रपोज्ड सेकेंड जंगल सफारी ऑफ सीजी। अब यहां पे भी देखिए 3 क्वेश्चन बनता है, रामचू हरमू कहाँ है, तो इट इज इन कबीर धाम। एक अलग क्वेश्चन बनता है कि रामचू हरमू फर्स्ट जंगल सफारी है, थर्ड जंगल सफारी है, नो इट इज सेकंड जंगल सफारी। अब उल्टा क्वेश्चन एक बनता है कि सेकंड जंगल सफारी छत्तीसगढ़ में कहां प्रपोज की गई है, तो डेट इज ऑन रामचू हरमू, एंड इफ डिस्ट्रिक्ट इज आस्क्ड इट इज कबीर धाम। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट कहाँ है आप सब कमेंट में बताएंगे कि कमेंट में कि फर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पे है, सॉरी फर्स्ट जो जंगल सफारी है वो कहाँ पे है। चलिए, तो नेक्स्ट इज द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, हम लोग पढ़ते हैं नारायणपुर। ठीक है, नारायणपुर, ये आप जो देख रहे हैं ये नारायणपुर का एक बहुत ही डिस्टिंक्ट चीज़ है, खुरसेल वैली में टीक फॉरेस्ट, ये याद रहेगा आप लोग को, इसलिए मैंने ये फोटो डाली है कि क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, बेस्ट सागौन कहाँ मिलता है, बेस्ट टीक वुड कहाँ मिलता है, दिस इज द खुरसेल घाटी, द घाटी, वेरी डेंस घाटी। ओके चलो, तो नारायणपुर पढ़ते हैं। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, नारायणपुर ओके, हाँ, स्टेब्लिश कब हुआ ये, स्टेब्लिश 2007 में। ठीक है, 2007 में स्टेब्लिश हुआ है। बहुत ही मिनिमल फैक्ट्स हैं नारायणपुर में। तो पहला फैक्ट आप पढ़ सकते हैं, यहाँ लीस्ट तहसील हैं, 2 ही हैं, 2 ही तहसील हैं यहाँ बस। ठीक है, जैसे एक हो गया आपका नारायणपुर और एक ओरछा, और विकास खंड में भी सबसे कम यही है, लीस्ट विकास खंड इन छत्तीसगढ़। लीस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट, लीस्ट पॉपुलेशन, मोस्ट डेंस फॉरेस्ट, जो आपने ऊपर दिखाया ना मैंने, इसीलिए फॉरेस्ट का डाला है, फॉरेस्ट। चलिए, अबूझमाड़ का अब हम लोग क्या बना लेते हैं, मैप बना लेते हैं। अबूझमाड़ का मैप, छोटा डिस्ट्रिक्ट है, जल्दी खत्म हो जाएगा अबूझमाड़। अभी हम लोग को कल की क्लासेस के बाद परसों की क्लास में जब वी विल डील विथ रायपुर, आप लोग को समझ आएगा कि क्यों राजधानी है एंड वाई। इतना फैक्ट्स है कि घूमना पड़ जाए आपको रायपुर जाके एक बार। चलिए गाइस, मजाक की बात थी, हम सब पढ़ेंगे, वी विल डील विथ ऑल दिस थिंग। चलिए तो नेशनल हाईवे 130D जो था वो नारायणपुर की ओर आता है, नेशनल हाईवे 130D। ठीक है, ये हो गया नेशनल हाईवे 130D। आपको याद होगा हम लोगों को कोंडागांव से कटते हैं नेशनल हाईवे 30 से 130D के लिए, तो ये है नेशनल हाईवे 30 जो है वो सीधा चला जाता है, कोंडागांव से सुकमा चला जाता है, और नेशनल हाईवे 63 चला जाता है तो हमारा दंतेवाड़ा चला जाता है वो नेशनल हाईवे, वहाँ से हम लोग, और ये जो है 130D ये कटता है तो आपको नारायणपुर की ओर लेके जाता है वो। ठीक है, तो ये हमने 130D देख लिया नारायणपुर। यहाँ पे नारायणपुर पड़ेगा आपका हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर है इस डिस्ट्रिक्ट का, नारायण हेडक्वार्टर। ठीक है, ये कोंडागांव से आ रहे हैं, आप मैंने बताया ना कोंडागांव से आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अबूझमाड़ हिल्स दिखेगा, अबूझमाड़ हिल्स। लेट्स ड्रॉ द हिल्स। हिल्स को हम लोग किससे बनाते हैं, ब्राउन कलर से बनाते हैं। ठीक है, तो ये अबूझमाड़ हिल्स है, अबूझमाड़ हिल्स।
चलिए, ये हो गया आपका अबूझ माड़ हिल्स एंड हियर इज ओरछा, ओरछा जो भी प्रोनाउंसिएशन करें। यहाँ हियर रिसाइड्स छोटा डोंगर, छोटे डोंगर। ये आयरन ओर यहाँ मिलता है, आयरन ओर रिजर्व्स है यहाँ पे। सो गाइज, अबूझ माड़ के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं कि अबूझ का मतलब नाम कहाँ से पड़ा। अबूझ, व्हाट डज अबूझ मीन्स? आपको किसी को पता हो तो कमेंट में बताइएगा। अबूझ मीनिंग इज अननोन itself, the meaning of अबूझ itself is unknown, that is, ये मतलब ही इसका अबूझ जो छत्तीसगढ़ी में हम लोग ये बोलते हैं अबूझ, तो that is unknown thing। ठीक है, यहाँ पे एक मतलब एंशियंट कहानी भी है कि सम गोंड कपल वाज देयर, वो लोग इन जंगलों के अंदर गए एंड दे वर नेवर फाउंड, सेड दैट्स व्हाई दिस प्लेस आर कॉल्ड अबूझ माड़। ठीक है, अबूझ माड़, दिस इज व्हाट आई हैव रेड। तो नारायणपुर अबूझ माड़ हो गया यहाँ पे आपका। ठीक है, अबूझ माड़ हिल्स। अब हम लोग अबूझ माड़ हिल्स के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अबूझ माड़ हिल्स, हियर रिसाइड्स अबूझ माड़ ट्राइब, अबूझ माड़िया ट्राइब। ये एक पीवीटीजीज है, पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, सेंटर की तरफ से 5 हैं और प्लस छत्तीसगढ़ में 2 और ट्राइब्स को ऐड किया गया है, तो टोटल छत्तीसगढ़ में 7 पीवीटीजीज हैं। ठीक है, हम इसको डील करेंगे जब ट्राइब्स पढ़ेंगे तो एवरीथिंग वी विल डील। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि पीवीटीजीज हैं ये। अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, लीस्ट रेनफॉल कहाँ होता है कबीरधाम में, तो मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होता है, नारायणपुर में। मैक्सिमम रेनफॉल अब नारायणपुर के अबूझ माड़ में होता है। ठीक है, अब मैक्सिमम रेनफॉल इंडिया में पहले कहाँ हुआ करता था, मौसिनराम के पहले चेरापूंजी में, तो नाम पहले दिया गया इसको, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अबूझ माड़ इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेरापूंजी, चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, अब ये देखिए, आपने मैंने ये फोटो डाला है, खुरसेल वैली का फोटो है, खुरसेल वैली। सो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेस्ट टीक वुड, टीक वुड को सागौनी बोला जाता है, सागौन। आपने सुना होगा सागौन गोल्ड है, मतलब सागौन इज वेरी कॉस्टली एंड बेस्ट टाइप ऑफ वुड। बेस्ट टीक वुड इज फाउंड इन खुरसेल वैली। अब यही आपके अबूझ माड़ इलाके से, हिल्स के पास से जाटलूर रिवर बहती है एंड दिस रिवर इज हैविंग अ क्रोकोडाइल रिजर्व एरिया। इसके पहले हमने एक और क्रोकोडाइल रिजर्व एरिया पढ़ा है, वो कहाँ है आप बताएंगे कमेंट में। भैंसा दरहा कहाँ है, भैंसा दरहा। ठीक है, ये जाटलूर सेकंड हमने पढ़ लिया है, अब और है हमारे छत्तीसगढ़ में, हम सब पढ़ते जाएंगे आगे। ठीक है, अबूझ माड़ पढ़ लिया हमने, यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ ली हमने। नेक्स्ट नारायणपुर। नारायणपुर इंपॉर्टेंट क्यों है, एक आपको पता होना चाहिए। अभी आत्मानंद स्कूल खूब खुल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, इंग्लिश स्कूल। देयर आर लॉट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी इन इंग्लिश मीडियम। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है। एक रामकृष्ण मिशन यहाँ नारायणपुर में है, कृष्णा मिशन 1985 से 1985 बाय स्वामी आत्मानंद, इन्हीं के नाम पे है स्कूल्स। अब फेमस क्या क्या है नारायणपुर में, लेट्स सी। मड़िया मेला इज वेरी फेमस, हाईली फेमस है, वेरी फेमस। क्वेश्चन पूछ सकता है माड़िया मेला कहाँ होता है। ठीक है, मौली माता मेला, ये भी एक मेला है, मौली माता मेला, ये भी एक बहुत फेमस है यहाँ का। तो 2 मेला फेमस है, माड़िया मेला, मौली माता मेला, ये 2 मेला फेमस है यहाँ पे। ठीक है, अब फर्दर पर्सनैलिटीज में कौन फेमस है, 2 पर्सनैलिटी यहाँ से फेमस हैं। देखिए, ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है तो पर्सनैलिटीज पूछ सकता है इस डिस्ट्रिक्ट से पूछना हो तो। ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। चेंद्रू मंडावी आपने द टाइगर किड ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से फेमस है, द टाइगर किड ऑफ छत्तीसगढ़। फर्स्ट हॉलीवुड हीरो है छत्तीसगढ़ का, क्वेश्चन पूछ सकता है हु वाज द फर्स्ट हॉलीवुड हीरो ऑफ छत्तीसगढ़। हॉलीवुड में किसने सबसे पहले वर्क किया, हॉलीवुड
hero. He worked on the documentary The Jungle Saga. अब तो ये इनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गया है। तो चेंद्रू मंडावी, इसी के बाद ये न्यूज़ में वापस आए थे, चेंद्रू मंडावी जी, ठीक है। अब ये कौन से ट्राइब से बिलोंग करते हैं? तो मंडावी लोग जो बिलोंग करते हैं वो माड़िया ट्राइब से है, माड़िया ट्राइब, ठीक है, माड़िया ट्राइब। फर्दर एक और फेमस अभी फिलहाल न्यूज़ में थे, वो थे राकेश माड़िया जी। राकेश माड़िया, ही इज़ 14-15 years old student who won gold in Malcolm in national competition. फर्दर सेंट फॉर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसके लिए भेजा गया है, हमारे सीएम साहब ने भेजा है, भिजवाया इनको आगे लिम्का बुक में दर्ज कराने के लिए इनका नाम को। सो गाइज, हमने ऑलमोस्ट पूरा ही देख लिया यहाँ दोनों ही डिस्ट्रिक्ट को। यहाँ पे आपने कबीरधाम पूरा डिस्ट्रिक्ट हमने देख लिया है, कबीरधाम की सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, और हमने इसके बाद हमने नारायणपुर भी देख लिया है, ये खुरसेल वैली आपने देख लिया। नारायणपुर में बहुत ही कम चीज़ें हैं, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देख ली हैं। पहले तो अबूझमाड़ हिल्स देख लिया हमने, नारायणपुर से हमने देख लिया, मड़िया मेला देख लिया, मौली माता मेला देख लिया, चेंद्रू मंडावी जी के बारे में पढ़ लिया हमने, द टाइगर गेट ऑफ छत्तीसगढ़, द जंगल सागा, माड़िया ट्राइब से थे वो, राकेश मंडावी मालखम से थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछा भी जा सकता है फिर से। चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़, हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है? नारायणपुर पे होता है। लीस्ट रेनफॉल कहाँ होता है? कबीरधाम पे होता है। दोनों डिस्ट्रिक्ट एक साथ पढ़ लिया हम लोगों ने। करंट अफेयर के हिसाब से हमने नीचे मलखम वाला देख लिया है, और इस जगह पे हमने सेकंड जो स्टेट का सेकंड ये सेंचुरी हम बना रहे हैं उसको देख लिया हमने, कहाँ? रामेपुर, ठीक है, यहाँ पे। चलिए, थैंक्स अ लॉट गाइस।